Good morning, students. Children, yesterday we summed up the points. I took up the part 1, um, which discussed that a stranger was watching Vipin Babu. He was standing on a bookshop. He purchased some books. He purchased 4 5 books he had the habit of purchasing. And every Monday he used to go to Kali Charan's new bookshop to buy books. He was watched by the stranger, and the stranger was Parimal Ghosh. Now, when Parimal Ghosh tells Vipin Babu that he visited Ranchi and he was along with him for a week, and he wants to share all the memories spent there, all the there, how did they live and how did he help him, all these things, but Vipin Babu was unable to recall, and this idea perturbed Vipin Babu greatly, because he thought that he couldn't recall the correct thing, and all the time it was obsessing him that he did not ever visit Ranchi, and he thought something has gone wrong with his memory, and he just, in the story we see that he goes on trying to contact one or the other friend and trying to recall. So let us continue with this story, Vipin Babu's lapse of memory, loss of memory. Now in the second part, what happens is Vipin Babu, the car was safely parked in Betram, but in Betram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver, and then driving up to the Strand Road. Then Bipu Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Now the intruder is no one but here Parimal Ghosh, one who interferes. Now he had taken a lot of time, and he was unable to recall. So he felt that Parimal Ghosh is no less than an intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It is inconceivable. We have also completed it. Inconceivable means unbelievable. Inconceivable. Inconceivable means unbelievable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had excellent memory. Actually, Bipin Babu had excellent memory, and therefore he was unable to find for his own self the reason why he is forgetting, unless Bipin Babu's head reeled. That is, he was confused. Was he losing his mind? Means he's asking his own self. So, but how could that be? He was working daily in this office. It was a big firm, and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet means he was thinking for his own self that is he losing his memory, and how could that be that he could lose his memory, because every day he was working daily in his office in a big firm. He was holding a responsible job, and nothing there seriously it was going wrong, but how could that be? And he was organizing important meetings also. How could that be that he had forgotten his trip to Ranchi? And yet the man knew a great deal about him. The man knew great deal about him means वो परिमल घोष उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे. How? He even seemed to know some intimate detail. तो कैसे कि उसको कुछ इंटीमेट डिटेल्स भी पता थे अपने परिमल घोष को विपिन बाबू के बारे में. द बैक ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, मतलब
भाई स्ट्रेंजर को किसी के बारे में डिटेल, किसी की लाइफ के बारे में पता हो तो वो कैसे पता होगा? या तो वो साथ रहे होंगे कहीं ट्रिप पर। यहाँ भी यही बात है। ब्रदर्स इंसेनिटी मीन्स मैडनेस, पागलपन। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हैविंग गॉन टू रांची। तो नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई। मतलब उनको लग रहा था कि परिमल घोष को तो झूठ बोल रहा है कि मैं जब इतना सब कुछ जानता हूँ। तो विपिन बाबू ये नहीं याद कर पा रहे हैं कि हम लोग जो साथ में गए थे, उसको लग रहा था कि विपिन बाबू ज़बरदस्ती झूठ बोल रहे हैं। डेलिबरेट मीन्स जान करके झूठ बोल रहे हैं। In 1958, during the puja, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. 1958 में की पूजा में वो जो थे वो कानपुर में थे, उनके फ्रेंड हरिदास बागची के मतलब घर पे रुके थे। All Bipin Babu had to do was write to नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अपने आप से वो सोच रहे हैं कि अब मैं हरिदास को लिखूं, खत लिखूं, और फिर बोले नहीं नहीं, लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, नो वे, कैसे लिखूं। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस। विपिन बाबू को फिर याद आया कि अरे हरिदास को मैं क्या पूछूंगा, वो तो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए हैं और उनके पास जापान का एड्रेस भी नहीं है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं सोचती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं आपसे बच्चों, आपको भी एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब तक आपके पास सामने किताब नहीं होगी, आप लोग जो है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मैं टेक्स्ट आपके सामने रख के पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके सामने टेक्स्ट हो। फिर देखिए आगे, बट वेयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ, मतलब सबूत की क्या ज़रूरत थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। मतलब उसको लग रहा है कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है, मैं तो गया ही नहीं, तो मतलब ही क्या है। आई डिड नॉट गो, दैट इज़ वॉट ही सेज। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ब्रीज ब्रीज मीन्स हवा, ब्रेसिंग मीन्स स्टिमुलेटिंग, मतलब हवा चल रही थी रिवर की, गंगा रिवर की। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड। मतलब लिंगर्ड मीन्स उनके दिमाग में डिस्कम्फर्ट था, असहज थे, वो कहने का मतलब है। ही वॉज लिटिल फिट फीलिंग डिस्कम्फर्ट, ही वॉज नॉट एट ईज, इन अदर वर्ड्स। सी व्हेन वन गोज टू river side, one always feels happy and pleasure, but Vipin Babu's mind was very much disturbed. Why his mind was disturbed? Because that thought was again and again obsessing his mind, उसके mind को hovering his mind कि ऐसा हुआ था क्या, ऐसा हुआ था क्या। वो अपने memory पे he is trying to give a stress to his memory to recall that whether in reality he visited Ranchi. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. फिर उन्होंने क्या किया कि अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर किया और फिर राइट नी को, घुटनों को देखा कि वास्तव में उसकी चोट भी है, क्योंकि परिमल घोष ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उस समय आपको चोट लगी थी, आपके निशान भी है, तो वो फिर उससे अपने को जस्टिफाई कर रहे कि वास्तव में क्या रांची गया था। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, मार्क था मतलब उनके नी पर, घुटने पर। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब उनको अभी भी याद नहीं आ रहा था कि इंजरी कैसे हुई, क्यों हुई। ही ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। ही जस्ट checked his right knee that there was a mark on the right knee where he fall. Parimal Ghosh says that he fell down there at Ranchi. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. तो वो उन्होंने दिनेश बाबू की याद आई। फिर दिनेश बाबू ने उनसे कहा कि वो रांची में थे उसी समय। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। उनको लगा कि दिनेश से, मुखर्जी से पूछूं मैं। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो उनके घर के पास ही रहते थे। इन बेनी नंदन स्ट्रीट। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ? उनको लगा कि मैं उनके घर ही चले जाऊँ, पूछ लूँ। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक कि विपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन। अब उनको लगा कि अगर मैं वहाँ जाऊँ, उनसे पूछूँ, तो और वास्तव में वो नहीं गए होंगे, तो दिनेश मुखर्जी उनके बारे में विपिन बाबू को लगा कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि अगर मैं ये कहूँगा कि आप बताओ कि मैं क्या गया हूँ, रांची गया था।
तो उन्होंने पता क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि बेटर मैं तो फ़ोन पे ही बात कर लूँगा. व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन? ही वुड प्रॉब्ली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स. मतलब उनको लगा कि अगर मैं दिनेश मुखर्जी से जाके पूछूंगा और वास्तव में मैं तो गया नहीं होऊंगा, दिनेश बाबू को लगेगा कि ये तो पागल हो गए. तो नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. उनको लगा कि ये तो बड़ा हास्यास्पद होगा, अपनी हंसी उड़ाने जैसा होगा अगर मैं दिनेश मुखर्जी को पूछूंगा तो. एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकासम कुड बी. और उनको लगा कि दिनेश मुखर्जी जो है बड़ी निर्ममतापूर्ण मेरे ऊपर हंसी उड़ाएंगे, मेरे पर हंसेंगे. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन. तो फिर उनको थोड़ा सा सांत्वना मिली, वो अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए थे. फील एट ईज मीन्स फील कंफर्टेबल. सच अ न्यूसेंस, कितना मतलब ये न्यूसेंस हो गया. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स एयर. उनको मतलब ऐसा गुस्सा भी आ रहा है ना कि जैसे दूसरे लोगों को क्या पड़ी है, मेरे को अदर पीपल्स एयर मीन्स इंटरफियरिंग विद एनी वन और अनोइंग एनी वन. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ हिज न्यू थ्रिलर्स. मतलब वो बेड में जो है वो एक थ्रिल स्टोरी, सस्पेंसफुल स्टोरी पढ़ रहे थे. बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट. बिपिन बाबू जो है न्यू मार्केट में जो परिमल घोष उनको मिले थे वो उसके बारे में तो पूरा भूल गए. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड. बच्चों ये ऐसी बात हो गई कि है ना, जैसे वो ऑफिस तो अपने चले गए पर पिछले दिन जो परिमल घोष उनको मिले और जैसे बात हुई उनकी और उनको उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था तो वो बड़े परेशान थे. और वही बात उनको दिमाग में अगेन एंड अगेन दैट सेम क्वेश्चन वॉज ब्रेकिंग हिज माइंड. इफ अ मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. वो अपने अपने मन में कह रहे हैं कि इफ एनी मैन नोज माई रांची ट्रिप एंड एवरीथिंग अबाउट मी हाउ can such a man be mistaken. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up to Dinesh Mukherjee. लंच के पहले उन्होंने दिनेश मुखर्जी को रिंग किया. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि मैं है ना फ़ोन पे ही बात कर लूँ. दिनेश मुखर्जी से वो जाके मिले नहीं. उनको लगा कि अगर मैं मिलूँगा तो क्या होगा, दिनेश मुखर्जी उनकी बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाएंगे और उनको एम्बेरसमेंट फील होगा. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. उनको लगा कि ऐसे फ़ोन पे बात कर लेता हूँ दिनेश मुखर्जी से ताकि मुझे बड़ी ऑड सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी. एम्बेरसमेंट मीन्स चिल्ड्रन कॉन्शियसनेस ऑफ हैविंग वायलेटिंग अ सोशल रूल. 2 अब वो नंबर डायल करते हैं. देखिए 235616. विपिन बाबू डायल द नंबर. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज विपिन हियर. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 1958. 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. तो वो कहते कि आप क्या कलकत्ता में थे? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 1958 में हम जो है वो कलकत्ता में थे. Wait, just a minute. 58? Just let me check in my diary. For a minute there was a silence. Vipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. उनकी जो दिल की धड़कन थी विपिन बाबू की वो बढ़ती चली जा रही थी. He was sweating a little. Hello, yes, I have got it. I have been out twice. Where? वहाँ. तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया, मेरी डायरी में लिखा हुआ. मैं 2 बार बाहर गया था. वंस इन फेब्रुवरी नियरली इन कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग. एंड देन वो कहते हैं एक बार तो मैं मेरे भतीजे की शादी में गया था. एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? द ट्रिप टू रांची. यू वर देयर टू. अरे हाँ, रांची की ट्रिप में गए थे, आप भी तो थे वहाँ. That's all. But what's all this silly thing about? Silly thing about means investigating an event. No, I just wanted to. मतलब उनको वो कह रहे हैं कि भाई आप ये सब इतना जानना क्यों चाह रहे हैं? दिनेश मुखर्जी पूछ रहे हैं. नो, तो वो धीरे से अपनी बात को, अंदर से तो बहुत परेशान है पर वो ऊपर से शो नहीं कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं? नो,
आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे, अरे मैं सिर्फ जानना चाहता था कि हम लोग कहाँ थे, एनी वे थैंक्स। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, विपिन बाबू ने जोर से रिसीवर फ़ोन का रख दिया। स्लैम्ड मीन्स शट विथ सडन फोर्स सो एज टू प्रोड्यूस अ shock and noise. So Vipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hand. अपना सिर पकड़ के बैठ गए अपने हाथों से। He felt his head swimming. उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनका सिर ही तैर रहा है, मतलब a chill seemed to spread over his body. उनके हाथ पांव पूरे शरीर ठंडा पड़ने लगा। There was sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. उनके बॉक्स में सैंडविच थे पर उनकी अब सब भूख ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो जो मतलब 24 घंटे से ऊपर जिस बात से वो परेशान थे और उनको लग ही नहीं रहा था, वो कभी गए भी थे। तो जब उसके फ्रेंड ने, दिनेश मुखर्जी ने फ़ोन पर सब बताया तो उनको मतलब जो जानकारी मिली तो उनको ये तो कन्फर्मेशन तो हो गया वो रांची गए थे, पर उनको थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा था कि मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वो अभी भी जॉब में थे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते थे जैसे हमने पढ़ा। नाउ चिल्ड्रन, हियर द पार्ट 2 एंड्स. I am reading the question, see, and you will write these question answers in your copy. If you have any problem, you can ask. I am reading the question to make it easy to understand. Why did Vipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? Next question, how did he try to decide what was right, his memory or Parimal Ghosh? Why did Vipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone him? Next question, what did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Vipin Babu or add to his worries? These are the 4 questions you will attempt in the copy, children. I hope you have understood. Thank you.